Good morning, all of you. I welcome on behalf of Navi Mumbai branch to all the participants in today's webinar. Today's webinar is on a unique topic which is OTR, means one-time restructuring. Nowadays, you would have seen that several small, medium and large enterprises are in deep trouble, especially due to this financing issues and due to liquidity crunch. However, government has announced and even now announcing lots of measures to tackle this particular situation. But more than that, Reserve Bank of India has recently introduced this one-time restructuring plan, which is very much beneficial for the small, medium and large enterprises or micro, small and medium enterprises. Friends, the speaker of today's session has got a unique relation with me, to be very frank with you. Sunil is the speaker and he is from our own branch. So Sunil, I welcome you on behalf of Navi Mumbai branch, and it is my honor and privilege and happiness to welcome you in this first session which you are going to take today. Friends, I must share the bonding between me and Sunil. That is the fact that we have studied our BCom, or during graduation period we were in University of Allahabad, and together we have completed our graduation. So you can imagine that what kind of scenario would have been at that time. And whenever we used to meet, we laugh a lot and we remember those golden days of our college days when we were studying in University of Allahabad. So one fine day he came to Mumbai, and outside my office with Manoj, he told that Manoj Pandey told me that somebody wants to meet you. Then I don't remember, even I have forgotten his face also, to be very frank with you, and I must admit my mistake. So one fine day he came and then, can you recognize me? Then a little bit, after recalling those days, I understood that he is a very old friend. And then I remember that he is my college friend. So I am privileged to introduce you, Sunil, today among this Navi Mumbai branch. However, I came Navi Mumbai in 1999, or rather 1998. But from 2000, I started my practice. So my practice is almost 20 years old. But Sunil has recently, around 5 years back, he has started his active practice. Sunil is a highly qualified person, and he is a chartered accountant and CMA with post-graduation degree in management from IIM Kolkata. He has been the founder of CFO services firm in the name of Earthwrit Capital. He is also, as I told you, that he is alumni of IIM Calcutta. He is originally from Lucknow and has worked in Delhi, Jaipur, and now based at Mumbai for last 5 years. In his career span of 25 years, he has worked across different industry domains, that is real estate, logistics, hotels, IT-enabled services to oil and gas sector. He has worked he has worked for a decade as a CFO of real estate group. So I think most of his career as of now has been into corporates, various corporates, and he has served as a CFO. Earthwrit Capital, which is a Sunil's platform, is a senior professional is a platform for senior professionals from industry, and is on a mission to help SME segment as a quasi CFO board advisory and help them to building their business. Currently, AV Capital is helping many SMEs across the industries of different kind of industries across country. He is a regular speaker on different forums on different subjects of economic interest, and also the visiting faculty of CMA and CA Institute. Uh, he Industry Forum and Chitkara University. He is a regular faculty of Chitkara University also. He has also co-authored a book of WIRC of ICI, which is under publication in the name of Virtual CFO. He sees a lot of opportunity of building professional network across globe to help promoters to create and develop great business. Currently, his major focus is on OTR to help businesses at large to come out of COVID impact. He is the true believer of
of a leader concept wherein he says that one idea, one decision has tremendous potential to bring great changes in this world. So, with this brief introduction and a different dimension of this MSME segment, I welcome you, Sunil, to take the charge of this session. Thank you. Thanks, Santosh. Respected seniors, dear friends, Jai Hind. I'm thankful to Navi Mumbai branch office bearers and particularly CA Santosh Sharma ji, who is friend of mine and chairman of the branch, for giving me this opportunity of sharing my thoughts with you. In this COVID scenario, I feel every CA is a warrior and a financial commando. And there is an urgent need of saving businesses and saving overall economy. We all know that this can't be done without us. We are imperative, we are inevitable. We CAs are partner in nation building, and now we need to return back to our clients for their business building, saving their businesses. Saving from liquidity risk of next 3, 6, 12 months period. Cash flow management has become more important than compliances. So this is something outline which will connect all of us to current today's session. This is time to play our role of savior and at the same time utilize this great professional opportunity in the form of restructuring of loan. So OTR, restructuring of loan or cash flow management are overlapping opportunities before all of us. Let's learn how to go for it in today's session. So let me share my presentation on today's topic. Hope it's visible. Yes, sir. Yes, it is visible. Yeah. So as the first slide goes, it should not be taken the OTR scheme, which suggests for loan structuring without diluting standard status of the account in banking system. This loan restructuring is not a loan waiver scheme. The basic preamble, the basic essence of the scheme is extension or extending current liability of principal or interest maximum up to 2 years. So it is not self-assumed. So it should not be assumed that it is available to all. There are eligibility criteria and COVID impact. Proving COVID impact is one of the basic things. And secondly, it's not a loan waiver scheme. It doesn't include it in. Although when I say it doesn't include, it doesn't deny also. So it will be depending on craftsman of expert making resolution plan as to how to present it, which should cover some waiver also. So point is that I'm just contradicting my views just to facilitate this complexity. I'm saying this is not intended to waive loan. However, in the scheme, it has not been it has not been denied. So we, the expert, have a scope of proposing some waiver in due course, depending on the impact on the business. So currently, I will be talking something about your client's business and balance sheet. This discussion is to understand more about your client, less on compliances, more on his cash flows, because business is name of cash flow cycles only. The more we understand, the better we will be placed to help him. Either we ourselves can help, or we can be teaming up to help our client vis-a-vis cash flow management
and this restructuring of loan will come as a help. So let's understand what is happening with the business, particularly SME business. And when I say SME business, now businesses up to 250 crore has been included as SME. So most of the businesses which are in SME segment have these undercurrents, particularly sectors which are impacted by COVID. So friends, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अगस्त तक मॉरेटोरियम रहा, जिसमें लोगों ने कई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं माना, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोगों ने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के मॉरेटोरियम लिए। सितंबर में कोई चीज कोविड को लेकर, बिजनेस को लेकर बदल गई हो, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल गई कि बैंकिंग सिस्टम, सारे लेंडर्स अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, बिजनेसेस को कह रहे हैं कि पहले तो मॉरेटोरियम पीरियड का लोन दें और उस पे इंटरेस्ट भी दें। सो वो जो मॉरेटोरियम पीरियड का ड्यू था, आरबीआई की गाइडलाइंस ने अलाउ किया कि ये मॉरेटोरियम पीरियड के जो ड्यूज हैं वो अगले 6 महीने अप टू मार्च तक लिए जाएं। बट इन मेनी केसेस व्हाट वी आर सीइंग इज नॉट एज पर आरबीआई रिकमेंडेशंस। सो कई केसेस में बैंकों ने डेबिट कर लिए हैं और उसके रिवर्सल के लिए बिजनेसेस बहुत अथक प्रयत्न कर रहे हैं। सो आरबीआई गाइडलाइंस एक तरफ, लेकिन वास्तविकता दूसरी तरफ है। The more we will know about restructuring banking guidelines, the better we will be placed to help our businesses or help our clients. So, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस में मॉरेटोरियम अलाउ ही नहीं किया गया, बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने। आज तक कई ऐसी सिचुएशन है जहां इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट अवेल नहीं की जा सकी है बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बिजनेसेस द्वारा, और उसके बहुत सारे रीजन रहे हैं। प्राइमरी मुझे लगता है इग्नोरेंस एंड बैंकिंग रिलेशनशिप जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सो बहुत सारे एकोमोडेशन जो अनाउंस्ड हैं वो बिजनेसेस तक पहुंचे नहीं, और जो एकोमोडेशंस अगस्त तक अलाउड थे उसका इम्प्लीकेशन सितंबर में बैंकिंग सिस्टम ने ले लिया। तो सितंबर में क्या क्या हुआ, उसकी वजह से बिजनेसेस में जिस तरह की लिक्विडिटी होनी चाहिए थी बिजनेस को उठाने के लिए, वो ड्राइड अप हो गई। बिकॉज सबको डर है कि एनपीए नहीं करना है, डीपीडीज जो डिफॉल्ट्स हैं या जो ओवर ड्यू पेमेंट्स हैं उनको बचाना है। सो मोस्ट ऑफ दिस ईसीजीएल और इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स। सो अगर आप किसी अपने बिजनेस का कैश फ्लो पढ़ेंगे तो बहुत सारा जो ईसीएल का पोर्शन है दैट हैज गॉन टू रिपे लोन व्हिच वाज ड्यू ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड। सो ऐसी स्थिति है जब लोन के अमाउंट से लोन पे हो रहे हैं, नए कैश फ्लो लाने के लिए जो ऑपरेटिंग साइकिल को हेल्प करनी चाहिए वो पैसे अवेलेबल नहीं है बिजनेसेस के पास। सो सितंबर मंथ थोड़ा डिफिकल्ट मंथ रहा। अक्टूबर में चीजें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, कई सारे एकोमोडेशंस भी आ रहे हैं। अभी रिसेंट एक डिस्कशन हो रहा है कि 2 करोड़ तक के लोन के लिए जो मॉरेटोरियम पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात है उसको गवर्नमेंट वेव कर रही है। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोसीड्स, बट थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसेस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस which are in impacted segment, like for example travel, tourism, entertainment, malls, construction, real estate. There are many impacted business segment. So now the question is that, is there any scheme for deferring liability of the business without diluting standard status? जो लोग स्टैंडर्ड मैनेज कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे डिफॉल्ट्स हैं 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बियॉन्ड, लेकिन क्या ऐसी स्कीम है? तो आंसर इज यस, एंड ओटीआर शुड नॉट बी द ओनली स्कीम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड है
बैंकिंग में या बिजनेस में ये बहुत कम समझा हुआ वर्ड है। उसके कई कारण रहे हैं। इन मैक्सिमम केसेस गाइडलाइंस, टेक्निकल गाइडलाइंस की अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड लेवल रिलेशनशिप मैनेजर के पास न होना, या बहुत सारे लोगों का केवल रिलेशनशिप बेस्ड फाइनेंस कंसल्टिंग और बैंकिंग रिलेशनशिप निभाना, वो उसके प्राइमरी रीजन रहे। हम लोग हमेशा समझते हैं और सुनते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में 3 टर्मिनोलॉजी यूज होती है और तीनों टैबू की तरह यूज की जाती है। मतलब बैंक हैज नेवर बीन पॉजिटिव एंड इट इज ओनली बिकॉज दे वांटेड टू अडहेयर टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जिस पे मेरा प्रश्न है, मैं डिस्कस करूंगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे भी प्रश्न है। सो माय डिस्कशन इज कि रीशेड्यूलमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स होने चाहिए थे बिजनेसेस में, और ये कोई टैबू वर्ड नहीं होने चाहिए। In current banking system, every restructuring is considered to be making every accounts NPA. Why there are provisions, and is there such guidelines from RBI? And हर restructuring accounts को NPA कर देती है, या रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग में कोई अंतर है? सो इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि समझिए एक बैंक में मेरा 2 साल का अभी रिमेनिंग लोन पीरियड है, और मैं अपने बैंक से कहता हूं कि बॉस अगले 6 महीने मेरी कोविड के इम्पैक्ट की वजह से एक सिंगल बिजनेस, टॉकिंग टू वन बैंक ओनली, विदाउट गोइंग इनटू मच निटी-ग्रिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ OTR, एक बिजनेस एक बैंक के पास जाता है कि मेरा 2 साल 3 साल का रिमेनिंग पीरियड है, मैं आराम से ये लोन पे कर दूंगा, केवल मुझे ये अगले 6 महीने साल भर का आप ऐसा रिलैक्सेशन दो कि मैं इंटरेस्ट पे करूं, प्रिंसिपल ना पे करूं, और बाकी के बचे हुए पीरियड में मैं प्रिंसिपल भी पे कर दूंगा, क्योंकि जो कोविड इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, 6 महीने साल भर का एक इम्पैक्ट है जो मेजर इम्पैक्ट है। उसके बाद चीजें पटरी पे आने लगेंगी, और वैक्सीनेशन के बाद सब चीजें हेल्थ वाइज सुधरने लगेंगी, लोगों का फियर कम होएगा, तो बिजनेस का साइकिल अपने आप पटरी पे आएगा। सो ये 2 साल का जो मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया हुआ है, उसी बात को ध्यान में रख के किया हुआ है। मैक्सिमम पीरियड 2 साल का एक्सटेंशन जो OTR स्कीम में अलाउ किया। अब मेरी बात यह है कि अगर मैं बिना एग्जिस्टिंग रिपेमेंट टेन्योर को छेड़े हुए अगर मैं लोन पे कर देता हूं, तो भी क्या मैं NPA हो जाऊंगा? और मेरी सेंसिटिविटी एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंसल्टेंट, केवल NPA होने की ही है। अगर मैं NPA नहीं हूं और रिस्ट्रक्चर्ड हूं, मेरी सेहत पे एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंसल्टेंट फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दीज आर स्पेशल सिचुएशन। केवी कामत की रिपोर्ट कहती है कि टोटल लेंडिंग का 72% इंपैक्टेड है। अगर इतनी भारी मात्रा में इंपैक्ट है कोविड का, तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। सो restructuring should not be claimed as a bad word. Rather, it's a golden word coming to rescue many of the businesses. Why this is still a complex subject, this is beyond my understanding. Reschedulement and restructuring without having NPA status should have been allowed by banking system, particularly for this period, and that is what I put forth as a thought process to all of you to think on this. So again, coming back to the topic, business is in problem, and there is one scheme which allows extension of liability, extending liability maximum up to 2 years without having it NPA. This slide reflects how some sectors are in red, ultra red, yellowish, and there are few sectors which are still greenish: agriculture, pharma, medical,
So these are few sectors where COVID has not impacted, and businesses, so it will be bit difficult for businesses to prove in this green segment that they are impacted by COVID. So a special expertise would be required, and there will be difficulty in claiming such a scheme for the businesses in these green sectors. But of course, it will be allowed in yellowish or red sector. This is the data which had been proposed by KV Kamath committee recommendation to RBI for this scheme, one-time restructuring scheme. If you read it carefully, this is not data mined by me. This is only copy paste of KV Kamath report. And if you read it carefully and go, there is a bottom line which suggests 72% of banking sector debt. अगर ये चारों क्वाड्रेटल्स को हम मिला लें तो तकरीबन 52-54 लाख 50 लाख के आसपास का लेंडिंग है टोटल. और केवी कामत रिपोर्ट ये कहती है कि about 72% of banking sector debt analyzed above affected by COVID. What does that mean? That means this restructuring will be required in one form or other by most of the businesses. And you can easily decipher retail, wholesale, roads, textile, engineering. So this 15 lakh crore business is ultra rare. And then NBFCs itself, power, steel, real estate. So many of the sector are in yellow. They will be requiring professional help, and which to my mind is not that difficult task, provided this taboo of restructuring goes away. Anything, any repayment schedule can be restructured. This is a special situation, and every special situation requires special solution. So to my mind, there are many things which should be thought of beyond OTR. OTR, which I'm going to explain now today, is a bit complex, particularly for those which are having exposure of more than 25 crore rupees. So this is gravity of situation. And one more derivative of this slide is that it is less to save individual business. It is more to save banking system as a whole. So this scheme by RBI is being proposed to save banking system itself. Because if these sectors are impacted, 72% of total lending, and there is no such restructuring scheme available from, I'm talking about if there is no such restructuring scheme, things would be worse. So in many of the situations, when you will understand as a consultant, as a chartered accountant, the detailings will follow. मैं बताऊंगा डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीजें. बट बहुत सारी सिचुएशन में आपसे आपके क्लाइंट ये पूछते हैं कि मुझे ओटीआर में रिस्ट्रक्चरिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो आपके पास कोई क्विक आंसर, क्योंकि आप उस क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हो, बहुत सालों से जुड़े हुए हो, उनके हिसाब से आप उनकी बैलेंस शीट समझते हो, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन समझते हो. हालांकि मेरा उसमें क्वालिफिकेशन है. मुझे ऐसा लगता है कि every chartered accountant who is associated with his client for compliances needs to work on the cash flow to understand his business more. So cash flow की exercise generally हम chartered accountants नहीं करते हैं जब हम उनके compliances संभाल रहे होते हैं, accounts, audit, tax देख रहे होते हैं. हमें उतना आइडिया नहीं होता है, तो एग्जैक्ट सिचुएशन तो कैश फ्लो एनालिसिस से ही क्लियर होएगी, which may take time. But these are some rudimentary factors, some fundamentals
on the basis of which you can recommend your client to go for restructuring scheme, including OTR. So these 4 questions are: do you have visibility on future cash flow of 1 year? So this point is very important. We need to understand, अभी तक जब जो बैंकिंग सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग होती रही थी, वो कोई चीज हो चुकी है, मतलब अकाउंट स्ट्रेस हो चुका है, उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग गेम में आती थी। जो अभी की रीस्ट्रक्चरिंग का डिस्कशन है, उसका मेजर पोर्शन वैसा नहीं है। वो हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग बहुत सारे केसेस में लोग इसलिए कराएंगे क्योंकि दे आर नॉट श्योर फॉर देयर 1 ईयर कैश फ्लोज। वो पिछला 6-8 महीने तो मॉरेटोरियम की वजह से, ईसीएल की वजह से और अपनी कुछ पूंजी थी, वो तो वो चला लिया। डिफिकल्टी आने वाले पीरियड में होने वाली है क्योंकि एक्यूरेसी से कैश फ्लो का प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप जनरली बिजनेस में अगर कैश फ्लो एक्सरसाइज कीजिए तो आज जो विजिबिलिटी का परसेंटेज 70-80% होना चाहिए, बिलीव यू मी 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी लेवल नहीं है कैश फ्लो का, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम। सो पहला प्रश्न ये है कि अगर आपके बिजनेस में, आपके कंसल्टिंग, आपके जो क्लाइंट हैं उनके बिजनेस में 1 साल के फ्यूचर कैश फ्लो को 70-80% से की एक्यूरेसी से मैप नहीं किया जा सकता है, तो आंसर इज यस, he should be going for OTR. The second question, no further credit from existing banker. So if there is no possibility of any, because accounts is being managed anyhow, ECL का अमाउंट या जो भी किसी तरह से भी हम जानते हैं कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं, तो businesses are in difficult situation. They are being managed through different कैश फ्लो वर्किंग। उस सिचुएशन में बैंकर्स को पता है हमारी सिचुएशन, और हमको भी पता है कि आगे की कोई फंडिंग पॉसिबल है। ईसीएल मिल चुका है हमारे को। मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्किंग कैपिटल इतना अच्छा नहीं है बिजनेसेस का, और बिजनेसेस ओवर लेवरेज्ड हैं ऑलरेडी। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है और प्रमोटर को लगता है कि आगे कोई फंडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दूसरा आंसर आपका ग्रीन है, ग्रीन टिक है। थर्ड क्वेश्चन, फियर ऑफ स्लिपिंग अंडर एनपीए, बिकॉज ये ओटीआर की स्कीम उनके लिए है जो अभी एनपीए नहीं हुए, पर्टिकुलरली 25 करोड़ से ऊपर वाले केसेस अगर अभी एनपीए नहीं हुए हैं तो ये स्कीम उनके लिए अवेलेबल है। तो तीसरी सिचुएशन ये है, हम सबको पता है हम डीपीडी 30 डेज 60 डेज मैनेज कर रहे हैं। ये कब एनपीए स्टेटस हो जाएगा, एंड वंस इट गेट्स एनपीए विदाउट इन्वोकेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये अपॉर्चुनिटी, ओटीआर की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कहीं से किसी और फंड रेजिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अगर इन चारों प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो मुझे लगता है कि क्लाइंट को नेक्स्ट स्टेप में, बिफोर यू से, मतलब there is a huge possibility of going to OTR, but before you say yes, आपका next step उसका cash flow बनवाना होना चाहिए, so that you can understand situation in a better way. So as I told you, those were basic questions you asked from your client, and if answer is yes, even then it will not be a self-assumed case कि बॉस बैंक के पास हम OTR लेके जाएंगे, रेजोल्यूशन प्लान बना के जाएंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा। As I mentioned when I started with my presentation, कि ये सेल्फ एज्यूम्ड स्कीम नहीं है, ये तीनों चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो चीज क्या है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कोविड नहीं होता तो आपका बिजनेस सही चल रहा था। मतलब 31 मार्च की आपकी बैलेंस शीट आपके बिजनेस को कैसे दिखा रही है, टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट क्या है, डिफॉल्ट्स क्या है। अगर वो उससे पहले 31 मार्च ना कहूं मैं, 1 मार्च कहूं, क्योंकि सारी चीजें 29 फरवरी के
आउटस्टैंडिंग और एक्सपोजर पे कैलकुलेट की जा रही है रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में। सो बिफोर फरवरी अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता रहा था, सही चलता रहा था, और उसके बाद आपके कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आए बिकॉज ऑफ कोविड, then you have a fair chance and brighter chance to go for this restructuring scheme which I am going to explain. The second fundamental is that there is a financial stress, and it is also because there is a disproportionate debt burden in the business. So if all the 3 points are there, you have good chance to prove. Please do not focus on right side of the contents. This content is only to reflect that these guidelines, these dated guidelines, RBI guidelines are there. अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप ये फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड के दोनों जो ब्लू कलर के गोले हैं उन पे कंसंट्रेट कीजिए और उसके हिसाब से ये स्कीम जो रिस्ट्रक्चरिंग की है ये सबके लिए अवेलेबल है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो 25 करोड़ के नीचे और 25 करोड़ के ऊपर। सो 25 करोड़ कौन सी डेट को? 25 करोड़ 29 मार्च को नहीं, 25 करोड़ आज को नहीं, 25 करोड़ उस दिन को जिस दिन आप ये स्कीम अप्रूव कराने जाएंगे अपने लेंडर से। अगर उस डेट को आपका एक्सपोजर इससे नीचे है तो अलग गाइडलाइंस हैं, एक्सपोजर ऊपर है तो अलग गाइडलाइंस है। और इस 25 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन, एक्सपोजर कैलकुलेशन में नॉन फंड फैसिलिटी भी इंक्लूड की जाएंगी। होप आई एम क्लियर। फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। So before I go explaining on OTR, nitty-gritties of OTR, let's understand what is restructuring. So आपने कोई लोन लिया है या बिजनेस में कोई लोन लिया है, इंडिविजुअल हो या बिजनेस लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, चाहे वो सीसी हो, टर्म लोन हो, ट्रेड फाइनेंस हो, किस प्रोजेक्ट फाइनेंस हो, किसी भी तरीका का लोन है, तो उस लोन में आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि आप किस इंटरेस्ट रेट से पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट कब पे करेंगे, प्रिंसिपल कब पे करेंगे। इंटरेस्ट आपको मालूम है रेपो रेट के इम्पैक्ट की वजह से या इंडिविजुअल बैंकिंग गाइडलाइंस की वजह से कई बार चेंज होते हैं, घटते बढ़ते हैं। अभी तो लगातार घट रहे हैं, बट कई बारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और दूसरी चीजों की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं। सो एक स्कीम होती है जिससे इंटरेस्ट रेट वेरिएबल डिसाइड होती है। सो वो जनरली ऑल्दो योर अकाउंट इज बीइंग रिस्ट्रक्चर्ड इन दैट, अगर बहुत टेक्निकल सेंस में करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं लेते हैं। बट अदर देन दैट कि आपके इंटरेस्ट रेट के अलावा आपने जो प्रपोज किया है रिपेमेंट शेड्यूल, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 3 साल 5 साल आपको पे करना है, कैसे पे करना है, उसकी आपने ईएमआई बनवाई है या कहा है कि जिस तरह से भी कि प्रिंसिपल एक स्टैटिक होगा और उसके बाद इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, जिस तरह से भी आपने रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेप्ट किया है, बिजनेस ने एक्सेप्ट किया है, अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में आप कोई चेंज करेंगे तो वो रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग में आएगी। और हर रीस्ट्रक्चरिंग एनपीए की तरफ जाएगा, ये अभी भी इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। मैं आगे आने वाले डिस्कशंस में उसको लूंगा। मेरे हिसाब से, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, कई सारे ऐसे केसेस में हर रीस्ट्रक्चरिंग एनपीए की तरफ नहीं जाती है, पर्टिकुलरली जहां पे कि आपका जो ड्यूरेशन है, जो टोटल ड्यूरेशन एग्रीड है, अगर वो कंप्लाई हो रहा है तो। लेकिन कई ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे कि हर तरह की रिस्ट्रक्चरिंग एनपीए डिक्लेयर करती है। सो वहां एक कंफ्यूजन पॉइंट है। आई हैव बीन टॉकिंग टू डिफरेंट बैंकर्स, अंडरस्टैंडिंग, सम आर सेइंग, मैंने लिंक्डइन पे भी प्रपोज किया, some are saying that it's only reschedulement or restructuring
doesn't go to NPA status. Some are saying it's a straight away NPA status. So we need to learn many things on this, and this is very relevant to discuss it इंडिविजुअल बैंक. हर एक केस में रिलेवेंट बैंक से डिस्कशन करके उनकी गाइडलाइन समझना वो इम्पोर्टेंट होएगा. बट जैसा मेंशन किया गया है स्लाइड पे कि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन इन इंस्टॉलमेंट, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे प्रिंसिपल का हो, या कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी भी अप्रूव कराना, वो भी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का एक हिस्सा हो सकता है. सो जैसे मैंने कहा था कि ओटीआर में जो बेसिक इंटेंशन इज टू एक्सटेंड करंट लायबिलिटी फॉर मैक्सिमम 2 years, लेकिन ये मना नहीं करती स्कीम के इसमें आपको एडिशनल फैसिलिटी सैंक्शन नहीं हो सकती. तो पॉइंट ये है कि अगर जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट्स हैं वो कैश फ्लोज बनाते हैं और केस प्रूव करते हैं कि ना केवल 2 साल का टाइम एक्सटेंशन चाहिए, बल्कि हमारे को इंटरमीडिएटली अपने ऑपरेटिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए कुछ लोन भी चाहिए होएगा, चाहे उसका नेचर वर्किंग कैपिटल हो चाहे टर्म लोन हो, वो भी अप्रूव किया जा सकता है इस स्कीम में, और वो रिस्ट्रक्चरिंग का ही हिस्सा है. So these are few things. Basically restructuring also include compromise and settlement, जिसकी बात OTR में नहीं है या कम है. So this doesn't talk about waiver primarily, but मेरी as an expert feeling है कि कई केसेस में इसके केस भी बनेंगे और इसके situations हैं. Friends, we have not yet started on nitty-gritties of OTR. I'm just explaining the background of it, the basic concept, few fundamentals, and this slide represents what is the ultimate benefit of going to OTR or adopting any resolution plan or opting for any restructure. So benefits are very obvious. It can facilitate or it can accommodate extension of loan liability for maximum 2 years. तो मेरे ख्याल से 25 से 40% की लिक्विडिटी इस तरह से इंश्योर हो सकती है अगर ये एक्सटेंशन हासिल किया जा सके, which is a good amount of funding which otherwise is not available. इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है कि इंटरेस्ट मोर और लेस सेम रहेंगे जो पहले चलते रहे थे. सो बेनिफिट ये है कि कोई ऐसे प्रेसिंग रूल्स नहीं है जिसमें ये अकोमोडेशन के अगेंस्ट में आपको आपके बिजनेस को, आपके क्लाइंट के बिजनेस को एडिशनल कोई बर्डन आएगा इंटरेस्ट के टर्म में. और यही लॉजिक रहना चाहिए बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्ज ना देने के लिए. So this must be understood very clearly. एक तरह की फ्रेश फाइनेंसिंग है क्योंकि बिजनेस को पैसे की जरूरत है और बिजनेस को आज 4 चीजों में पैसे खर्च करने हैं. उसको पहला पैसा खर्च करना है लोन रिपेमेंट में, दूसरा पैसा खर्च करना है टैक्स में, तीसरा पैसा खर्च करना है ओवरहेड्स में, और चौथा पॉकेट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल है. तो इन चारों बिजनेसेस में आज की जो स्थिति है, जो पैसा अवेलेबल है बिजनेस के पास वो 1 से 2 मैक्सिमम पॉकेट के लिए है, चारों पॉकेट के लिए नहीं है. इस स्कीम में जाके इफ वी कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई लोन ना पे करना पड़े, तो मेरे को दूसरे और पॉकेट्स के लिए पैसा मिल जाता है, विच इज इक्वलेंट टू फ्रेश फाइनेंसिंग. एंड मेरी तरफ से एक प्रोफेशनल इनपुट है कि रेजोल्यूशन प्लान बना के उसमें काम करने से बिजनेस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, जो अदरवाइज बहुत रेयर है एसएमईज में. पर्टिकुलरली फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नाम पे बेसिक पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, मंथली बैलेंस शीट प्रिपरेशन, वो सब इट्स absent. It is one of the major cause of stress to the business. तो वो अलग सब्जेक्ट है, बट वहाँ एक डिसिप्लिन आएगा, वहाँ हेल्प मिलेगी. सो दिस इज साइड इफेक्ट, दिस विल बी साइड इफेक्ट ऑफ OTR और गोइंग फॉर द स्कीम.
which is very, very beneficial, which is going to be beneficial for the business. And last but not the least, अकाउंट्स डाउनग्रेड नहीं होगा अगर ओटीआर स्कीम में ऑप्ट करते हैं. जैसा मैं बता रहा था कि शेड्यूलमेंट, रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट अल्टरिंग टेन्योर, वहां तो कंफ्यूजन है और इंडिविजुअल बैंक से डिस्कशन करके उस चीज को समझना पड़ेगा. बट ओटीआर स्कीम में गिवन द गाइडलाइंस, आप 25 करोड़ से नीचे वाले के केस में तो अगर आप एनपीए भी हो गए हैं तो भी वो स्टैंडर्ड कर लिया जाएगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ दिस स्कीम. 25 करोड़ से ऊपर वाले केस में आपको स्टैंडर्ड रहना ही रहना, चाहे आप डीपीडी 89 दिन के हो जाए, बट आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए एज ऑन डेट. सो वो क्राइटेरियाज हैं, आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस में हमें क्लाइंट को हेल्प करना है, वो पूरा जो इकोसिस्टम है, जो लाइफ साइकिल है इस रीस्ट्रक्चरिंग का, वो क्या होगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ ये समझने की बात है कि जो हम क्लाइंट को हेल्प करने वाले हैं या उसको ओटीआर में सपोर्ट करने वाले हैं या रीस्ट्रक्चरिंग पे कंसल्ट करने वाले हैं, इस पूरे ट्रांजेक्शन का लाइफ साइकिल 3-4 महीने नहीं है. इस पूरे ट्रांजेक्शन का पहले तो आगे 3-4 महीने में आप रेजोल्यूशन प्लान बना के अप्रूव करवाएंगे बैंक से, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है 30 जून तक, तो वो एक पीरियड आ गया 6-8 महीने का. और उसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी ना केवल बिजनेसेस की तरफ बट ऑल्सो टूवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम्स, जहां पे कि हम ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करा रहे हैं. वी विल हैव टू इंश्योर that everything needs to go as per plan. जो आपने कैश फ्लो प्लान्स बनाए हैं उसके तहत ही आगे पीरियड में कैश फ्लोज आने जाने चाहिए. एंड दिस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. हम आप जानते हैं कि बैंकों में जो सीएमएज और कैश फ्लोज दिए जाते हैं नॉर्मली, उनका और एक्चुअल का कितना वेरिएंस होता है. सो एक तरफ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बिजनेस बिल्ड करने का, बिजनेस के साथ खड़े रहने का, एंड एट द सेम टाइम बहुत जिम्मेदारी, बहुत मेहनत का काम होएगा इस चीज को एग्जीक्यूट करने का. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, इंटरनल टीम. आप हर बिजनेस जो आपका क्लाइंट है आप उसको एनालाइज करेंगे कि उनके पास इंटरनल टीम तो है लेकिन ओटीआर अभी समझा नहीं गया है. जिन बैंकों के साथ उनकी रिलेशनशिप है उन्होंने अपनी अभी ओटीआर मंगाई नहीं है. इन मेनी केसेस बैंकों के जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, ग्राउंड लेवल जो लोग हैं, उन तक ओटीआर स्कीम पहुंची नहीं है, या पहुंची है तो वो उसको अंडरस्टैंड करने में समय ले रहे हैं. कुल मिला के बिजनेस के पास इंडिविजुअल बैंक की स्कीम अभी तक भी नहीं पहुंची है, या पढ़ी नहीं गई है, समझी नहीं गई है. So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that we should be engaging with our promoter, our business client to make him understand कि बॉस ये बड़ा गेम, बड़ा कहानी होने वाली है आगे आने वाले दिनों में. आप एक इंटरनल टीम स्पेशलाइज करिए, इसमें एक अलग से टीम की जिम्मेदारी दीजिए बिलो सीएफओ, बिलो हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस. ऑफ कोर्स हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस उसको लीड करेगा, बट इट शुड बी अ सेपरेट टीम so that आप उसको रन कर सको एज अ कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर, उसको गाइड कर सको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी जा सके. इन मेनी केसेस सीएफओज आर अवेलेबल, हेड ऑफ फाइनेंस आर अवेलेबल, बट उनके पास अभी बिजनेस को संभालने में उनकी बैंडविड्थ, बहुत सारी बैंडविड्थ कंज्यूम्ड है. तो उनके पास ओटीआर, जो कि बहुत ही अलग तरह का स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, जहाँ बहुत मेहनत लगने वाली है, उन सब को ये समझाने की जरूरत है कि अलग से टीम बना के, और टीम बी रखने की भी जरूरत है. कोविड का पीरियड है, कोविड का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, चीजें अनलॉक 2-3 चल रहा है, सब लोग सब जगह जा रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ केसेस एवरी डे, नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग. सो देयर आर चांसेस कि आपकी जो टीम में की मेंबर है, अगर उनको गॉड फॉरबिड अगर उनको कोविड इम्पैक्ट हुआ
अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बट ये जो पीरियड इम्पैक्ट होगा अगला 15-20 दिन, एक महीने का, क्या वो बिजनेस अफोर्ड कर सकता है? जिसका आंसर है नहीं, और वो टीम भी नेचुरली आप हैं. सो यू नीड टू कन्विंस योर क्लाइंट, योर बिजनेस कि बॉस, यू नीड टू बिल्ड अ टीम बी ऑल्सो. एक तो इंटरनल टीम को आइडेंटिफाई करना, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करना, एंड प्रपोजिंग योरसेल्फ एज टीम बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सटर्नली, बिकॉज मैंने कहा कि एक केस बिल्डिंग एक्सरसाइज होएगी. इट शुड नॉट बी मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे. सो मार्च के पहले, या फर्क 1 मार्च के पहले का बिजनेस कैसे चल रहा था, या 31 मार्च के फाइनेंशियल्स क्या हैं, बहुत सारे केसेस में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी रिटर्न फाइलिंग की, अभी भी अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं. सभी 31 मार्च की बात कर रहा हूँ. एंड आप गाइडलाइंस अगर क्लियरली पढ़ो बैंकों की, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की गाइडलाइंस पढ़ रहा था, तो उसमें उनको जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के अलग अलग फाइनेंशियल सर्टिफाइड चाहिए. सो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर पार्ट टू मेक आवर बिजनेसमैन और क्लाइंट अंडरस्टैंड कि बॉस ये सब चीजें होने वाली. एंड कई केसेस में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद हैं, कई केसेस में नहीं है. यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर. और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी एंगेजमेंट साइकिल है. नॉर्मली सितंबर अक्टूबर ऐसा पीरियड होता है जब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी चीजों में नॉर्मल कंप्लायंसेस में बिजी रहते हैं. ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसको करने के लिए टीम का अवेलेबल होना जरूरी है. आर्टिकल्स चले गए हैं एग्जाम्स की तैयारी में, जो हमारे स्टाफ हैं वो गांव चले गए हैं, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी पे असर आता है. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अंडरस्टूड क्लियरली, थोड़ा विजुअलाइज करके, क्योंकि इन्वोकेशन डेट 31 दिसंबर ही है, और ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए. अगर वन टाइम में ये कायदे से स्कीम इन्वोक होके अप्रूव नहीं हुई तो ये लैप्स हो जाएगी. तो ये हमको भी समझना है, और अपने बिजनेसमैन को भी समझाना है, अपने क्लाइंट को भी समझाना है कि लंबी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें प्लानिंग इज 50% ऑफ द वर्क. अगर हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ दिसंबर में करने की जरूरत पड़ेगी. और सोच के देखिए कि सारे लोग जो इम्पैक्टेड सेगमेंट में हैं, अगर दिसंबर में सब कुछ करेंगे तो क्या सिचुएशन होने वाली है. सो मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि थोड़ा इसको विजुअलाइज करें, थोड़ा प्रोएक्टिव होएं, एंड कल के कल या जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे में या फोन पे डिस्कशन करके, या अब तो वर्चुअली भी पॉसिबल है, एक अपनी एक क्लाइंट मीटिंग जरूर फिक्स कीजिए कि बॉस गाइडलाइंस आ गई, समझ ली, इतना जो मुझे पता है वो आप लोगों को भी पता है, या कंफ्यूजन चल रहा है, एंड हाउ यू कैन रिजॉल्व ऑन दोज कंफ्यूजन. टाइम इज एसेंस ऑफ द बिजनेस एंड योर प्रैक्टिस एज वेल. सो टाइम को रिस्पेक्ट करके उस तरफ काम करने को. देन अगेन, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो बैंकिंग रिलेशनशिप फाइनेंस में नहीं काम करते. मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं टोटली नंबर, हालांकि इंस्टीट्यूट कहता है 3 लाख प्लस मेंबर्स हैं, बट कीपिंग इन व्यू द वर्क वॉल्यूम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस विषय को डील करने के लिए. तो आपस में नेटवर्किंग, आपस में कोलैबोरेशन विल बी द की. बिकॉज कई केसेस में हम अकाउंट्स एंड टैक्स में रहे हैं, हम फाइनेंस में नहीं रहे, और कई केसेस में फाइनेंस में आप रहे भी हैं, तो आपके हर क्लाइंट का जो बैंकर है उसके साथ आपका हो सकता है रिलेशनशिप ना रहा हो. किसी का एनबीएफसी के साथ है तो पीएसयूज के साथ नहीं, और पीएसयूज में भी अलग अलग तरह के बैंक हैं. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये 3 विषय समझना कि अलग अलग बैंकिंग, एक बिजनेस में पीएसयूज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, एनबीएफसी भी हैं, इन सबके पूरे इकोसिस्टम को लीड एंड मैनेज करना होएगा. तो एक सीनियर बंदे की इसमें जरूरत रहेगी, इससे टीम अप करने की जरूरत रहेगी. और क्योंकि इस टीम में
एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म एक प्राइमरी की एलिमेंट है। मतलब हम स्कीम बनाएंगे, सारे बैंक उसको एग्री करेंगे, तो कल जो फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे वो एक एस्क्रो अकाउंट में आएंगे और उसी से बिजनेस भी चलेगा और उसी से लोन रिपे भी होंगे। ऐसी मैच्योरिटीज एसएमईज में नहीं है। मेरा बहुत बोल्ड प्रोपोजिशन है। एस्क्रो मैकेनिज्म में कंजर्शियम ऑपरेट करने का मैच्योरिटी, और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प। सो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसको समझना और उसके लिए तैयार होना जरूरी है। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द स्कीम। देन आरबीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि जैसे आपको जीएसटी में हर रोज एक नया सर्कुलर होता है, आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन रहेगी कि बैंक, क्लाइंट और आरबीआई के बीच में बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए कई सारे मल्टीपल बैंक, इंडिविजुअल बैंक के और आरबीआई की गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा समझना है। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू एंगेज विद फाइनेंस एक्सपर्ट्स जो रीस्ट्रक्चरिंग के एक्सपर्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट engaging with finance consultant जो रिलेशनशिप बेस्ड फाइनेंस कंसल्टिंग करते हैं, जिनको इतना टेक्निकल चीजों का आइडिया नहीं है। और टेक्निकल में भी इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, क्योंकि वो फंडिंग फाइनेंसिंग का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो 2-3 महीने का होता है। हियर इन दिस केस इट इज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। सो रीस्ट्रक्चरिंग वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट का आपके साथ जुड़े रहना, और ऐसी हम अगर आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़े तो मैं तो चाहूंगा, मैं प्रपोज करूंगा कि क्यों ना नवी मुंबई ब्रांच पे एक पैनल बनाया जाए 3-4-5 लोगों का, जो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके क्लाइंट्स हो, उनकी जनरल क्वेरीज, हैंड होल्डिंग, वैसा एक इकोसिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए। और नवी मुंबई ब्रांच में ये शायद पहला प्रयोग हो इस तरह का, जहां पे कि एक लोकल विसिनिटी में जो बिजनेसेस हैं उनको हैंड होल्ड करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल अवेलेबल। सो दिस विल बी माय प्रपोजिशन, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग, एनपीए रीस्ट्रक्चरिंग या ओटीआर रीस्ट्रक्चरिंग में स्पेशलाइज करेंगे, तब भी जबकि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने क्लाइंट के लिए ये सर्विसेज चाहिए होंगी। सो दिस इज वन ऑफ द प्रपोजिशन फॉर अ नोट बाय ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ब्रांच। अगर इस पे हम मिलके साथ में कुछ कर सके, सो दैट हम अपने यंग मेंबर्स या ऐसे मेंबर्स जो अकाउंट्स एंड टैक्स की प्रैक्टिस में हैं, उनको हेल्प कर सके, उनकी क्लाइंट की हेल्प करने के लिए, इट विल बी वेरी वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू द स्कीम। अभी तक सब बैकग्राउंड था, लॉजिक था। लेट्स अंडरस्टैंड निटी-ग्रिटीज ऑफ स्कीम। जैसे मैंने पहले बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग की ये स्कीम सबके लिए अवेलेबल, 25 करोड़ से नीचे और 25 करोड़ रुपए से ऊपर उसका मेजर क्लासिफिकेशन। सो ये इंडिविजुअल, रिटेल, होम लोन, बिजनेस लोन, ट्रेड फाइनेंस, सो कोई ऐसा एक्सक्लूजन नहीं है। कौन कौन से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन इसको क्वालिफाई करता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसमें भी सभी कवर्ड है, केवल फंड्स नहीं कवर है। जो एआईएफ है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनकी बात नहीं की गई है। अदरवाइज इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, एनबीएफसी, एचएफसी, वो सब कवर किए गए हैं, मतलब एज अ लेंडर, नॉट एज अ बोरोअर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अगर एनबीएफसी और एचएफसी ने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो क्वालिफाई करता है स्कीम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर एक्सपोजर्स विच आर बिलो 25 करोड़ और 25 करोड़ से नीचे, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान स्कीम है। बहुत सारे जो क्वालिफिकेशंस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट 25 करोड़ से ऊपर वालों के लिए है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर ये अकाउंट मार्च को, पहले तो 25 करोड़ से कम हो एक्सपोजर, और अकाउंट शुड बी स्टैंडर्ड ऑन 1 मार्च।
स्टैंडर्ड का मतलब डीपीडीज अगर 60 दिन से ज्यादा भी है, 80 दिन भी है, मतलब 90 दिन से कम, एनपीए स्टेटस नहीं है, स्टैंडर्ड है अगर, तो भी ये स्कीम में ऑप्ट कर सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई खास बात नहीं। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन है वो 31 मार्च 2021 रखी गई है, विच इज द कंफर्टेबल टाइमलाइंस 25 करोड़ से नीचे वाले के केसेस के लिए। बहुत सारे टेक्निकल जो क्वालिफिकेशंस है, लाइक फॉर एग्जांपल रेटिंग, तो इसमें रेटिंग वेटिंग की कोई जरूरत नहीं हुई होएगी। जो 25 करोड़ से ऊपर या 100 करोड़ से ऊपर पर्टिकुलरली उनके लिए रेटिंग की जरूरत है, यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल होएगा। केवल एक ही प्रश्न है जो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में उठाऊंगा कि मल्टीपल लेंडर के केसेस में ये कैसे ऑपरेट करेगा, उसकी क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी है, जो कि इंडिविजुअल बैंकों की गाइडलाइन से क्लियर होंगी। अगेन ये सब रहते हुए भी आपको इम्पैक्ट प्रूव करना है कि आपका जो स्ट्रेस है वो वही जो प्रेम्बल्स मैंने बताए थे कि अदरवाइज ये वाइबल एसएमई है, वाइबल बिजनेस है, ये कोविड की वजह से स्ट्रेस में आ गया है और इसको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अगेन आरबीआई ने बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोविजनिंग नॉर्म रखे हुए हैं, केवल 5% का प्रोविजन करना है एक्सपोजर के लिए, विच इज अ वेरी गुड प्रपोजिशन फ्रॉम आरबीआई। तो बैंकों को भी बहुत स्ट्रेस नहीं होने वाला है और कंफर्टेबल कन्वीनियंट। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बैंकिंग साइड पे नहीं जाऊंगा। आज का हमारा डिस्कशन है, दो विषय प्राइमरी है, एक आप समझ लें बेसिक्स ऑफ स्कीम, दूसरा इतना समझ लें कि कल या आज ही अपने क्लाइंट से एक बेसिक डिस्कशन कर सकें ओटीआर या रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। बैंकिंग की गाइडलाइंस, बैंक की प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, वो शायद आज का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कभी और का सब्जेक्ट है। एंड देन लेट्स डिस्कस फॉर केसेस वेयर एक्सपोजर is more than 25 crore. And again, when I'm saying exposure, it is an exposure on the date of submission to bank for approval. So जिस दिन को हम जा रहे होंगे ना, ये आज का है ना, ये 1 मार्च का है, उस केस में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो आगे हम देखेंगे। और इस जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं तो अभी 25 करोड़ से नीचे वाले की किसी भी चीज को आप दिमाग में मत लाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा। जहां जहां जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। सो अगेन लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये मैं बता भी चुका हूं, और ये 25 करोड़ और 25 करोड़ से ऊपर दोनों में के लिए भी कॉमन है। सारे बैंकिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग लेंडिंग कवर होंगे। यहाँ एक डिफरेंस है 25 करोड़ रुपए से नीचे वाले केस में। यहाँ ये कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो 1 मार्च को एसएमए 0 के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सो 1 मार्च जो एक डिसाइडिंग डेट है, उस डेट में आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए और एसएमए 0 के नीचे होना चाहिए। हाँ, दूसरा जो क्राइटेरिया है जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये कहता है कि 1 मार्च का तो ठीक है, 1 मार्च के बियॉन्ड आज तक की स्थिति में अगर 30 दिन के बियॉन्ड चला जाए तो भी आप कवर्ड हैं स्कीम में। आप बस एनपीए नहीं होने चाहिए टिल द डेट ऑफ इन्वोकेशन। अगर आप एसएमए 0 है 1 मार्च को, उसके बियॉन्ड नहीं गए हैं डीपीडीज में, तो आज की डेट में भी अगर आप 30 डेज 60 डेज एंड बिलो एनपीए हैं तो भी आप कवर्ड हैं इन्वोकेशन डेट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई केसेस स्ट्रेस, कई बिजनेसेस स्ट्रेस में हैं जिनका डीपीडीज ऊपर जा चुका है, 30 से 60 दिन के बीच में है। ऐसे बिजनेसेस में ये डिसीजन लेना, इसको इन्वोकेशन डेट तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट। We are associated with business for long and they are in need of this.
वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी मस्ट एक्सप्लेन इट टू देम, इससे पहले कि वो एनपीए हो जाए। बिकॉज एनपीए हो जाएगा तो ये स्कीम नहीं है, दूसरी स्कीम है। स्कीम इज ऑलरेडी देयर, एनपीए होने पे भी स्कीम है, फिर वो दूसरी स्कीम लगती है, और एनपीए हो गया तो फिर ओटीआर नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन द नॉर्म्स। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि 25 करोड़ से नीचे के केस में अगर 1 मार्च के बाद एनपीए हो भी जाता है तो भी वो रिस्टोर हो जाएगा। 25 करोड़ से ऊपर के केस में आपको इन्वोकेशन डेट, जो मैं समझाने वाला हूं कि इन्वोकेशन डेट क्या है, जनरली आप समझिए कि वो डेट जब बैंकिंग सिस्टम आपका, सारे बैंक मिलके आपका स्कीम अप्रूव करेंगे, उस डेट तक आपको एनपीए नहीं होना है। बिकॉज एनपीए हो जाएंगे तो ये स्कीम लैप्स हो जाएगी। दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, एंड आई एम सेइंग कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एनपीए नहीं होना है, नहीं होना, अरे हो गए तो भी दूसरी स्कीम अवेलेबल है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। सो एब्सोल्युटली डरने की, फोबिया की, टैबू की जरूरत नहीं है। हर एक केस में सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी एनपीए सिचुएशन है, वो भी डील करने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन्वोकेशन। एंड ये इन्वोकेशन इज नॉट सिनोनिमस विद द बैंक सैंक्शनिंग डेट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो एक सिंगल लेंडर के केस में ऑफ कोर्स सैंक्शन डेट बाय सैंक्शनिंग बाय सोल लेंडर एंड इन्वोकेशन डेट विल बी सिनोनिमस, वो उसी डेट को अप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन ही बहुत कम है। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस में भी अनसिक्योर्ड लोन के वजह से बहुत सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब मोर देन वन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं। सो सोल लेंडर में समझने का और समझाने के लिए बहुत आसान है कि हाँ भाई, आपने स्कीम बनाई, लेंडर के पास गए, उन्होंने अप्रूव कर दिया, आपकी स्कीम इन्वोक हो गई, सैंक्शन भी हो गई, इज इक्वल टू इन्वोक भी हो गई। बट प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन है नहीं। हर एक केसेस में मोस्टली ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि एक से ज्यादा लेंडर्स है। वहां पे ऐसी सिचुएशन में जहां मल्टीपल लेंडर्स हैं, स्कीम में दोनों क्राइटेरिया, ये बीच में जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये प्लस, दिस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ही क्राइटेरिया प्रूव करने हैं आपको स्कीम को इन्वोक करने के लिए। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, जो कि मोस्टली एक या दो लेंडर से पूरा हो जाता है, जो उसके मेन लेंडर होते हैं या टीम लेंडर होते हैं बिजनेस के। सो 75% ऑफ वैल्यू और 60% इन नंबर। ये 60% इन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बैलेंस शीटों में अनसिक्योर्ड लोन वाले लेंडर्स भी हैं। सो व्हेन आई से 60%, अब उसमें फ्रेगमेंटेशन का क्या होएगा, डेसिमल में 60% जब कैलकुलेट होएगा तो क्या होएगा, दैट ऑल वी विल नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडिविजुअल बैंक गाइडलाइंस। बट आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती है कि भाई 10 बैंक हैं तो एटलीस्ट 6 लेंडर से आपको ये स्कीम अप्रूव करानी होगी। तो जैसे ही ये क्राइटेरिया पूरे होते हैं, आपकी स्कीम अप्रूव हो जाती है। मतलब बैंकों ने अलग अलग लेटर लिख के आपको कह दिया कि हाँ ठीक है, ये स्कीम, द मोमेंट यू गेट दिस नंबर। अब दो प्रश्न आते हैं। पहला, जिन्होंने इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, उनका क्या? सो नियमों के हिसाब से जो रेजोल्यूशन प्लान इन नंबर्स ने अप्रूव कर दिया है, 75% और 60% नंबर्स, वो उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा जिन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है। दे आर अंडर कंपल्शन टू कंप्लाई विद द रेजोल्यूशन प्लान बिकॉज इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय 75% of value and 60% in the number. अगेन, जिन्होंने ये स्कीम अप्रूव नहीं की थी,
उनको डबल द प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो दो तरफ की मार है, इसलिए आरबीआई ने, मुझे ऐसा लगता है कि स्कीम बनाते समय ये विजुअलाइज किया कि मल्टीपल लेंडर के केस में बिजनेसेस बैंक को समझा पाएंगे, उसमें थोड़ा उसको ईज करने के हिसाब से, बिकॉज ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। बैंक्स or lenders which are not participating to the scheme are still to comply with the scheme provided these criteria are achieved, and उनको प्रोविजनिंग भी ज्यादा कर दी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा करें। कंसेंसस बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी। बट आई एम सेइंग कि ये सब चीजें इन्वोकेशन तक हम समझ गए। ये जो आखिरी लाइन इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट है, ये क्या चीज है? बिकॉज इन्वोकेशन डेट 25 करोड़ रुपए से ऊपर के एक्सपोजर में 31 दिसंबर है, और मेरे हिसाब से ये 31 दिसंबर 25 करोड़ वाले केसेस के लिए ये कल ही है, परसों ही है, नेक्स्ट वीक ही है। बिकॉज इतने लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेसेस होंगे, बैंकों से निगोशिएट करना, रेजोल्यूशन प्लान बनाना, उनसे डिस्कशन इटरेट करना, it will consume a lot of time, and believe me, in December every bank will be having plethora of these schemes, so we need to hurry on behalf of our business. इन्वोकेशन के बाद एक क्लॉज है कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, मतलब सारे मल्टीपल लेंडर के केसेस में सारे बैंक जो एग्री कर गए वो फिर एक ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके हिसाब से आगे डॉक्यूमेंटेशन होगा, स्कीम इंप्लीमेंट होगी और एस्क्रो अकाउंट मैनेज होंगे, और आगे ये कैश फ्लोज बिजनेस के चलेंगे, उसमें से बिजनेस के लिए पैसा निकलेगा, उसमें से टैक्स के लिए पैसा निकलेगा, उसमें से ओवरहेड के लिए पैसा निकलेगा, उसमें से लोन के लिए पैसा निकलेगा। तो एक पूरी डिटेल्ड स्कीम बनाई जाएगी, जिसको फर्दर टू 31 दिसंबर, समझो ये इन्वोकेशन डेट हमने लास्ट डेट को अचीव किया 31 दिसंबर, वी हैव गॉट कंसेंसस ऑफ दीज नंबर। तो अगले 30 दिन में हमारे को 30 जनवरी तक में हमारे को ये इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट साइन कराना है। और जितनी भी बात मैंने कही, इन्वोकेशन डेट, इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से कोई भी टाइमलाइंस अचीव नहीं हुई तो ये स्कीम वंस फॉर ऑल लैप्स हो जाएगी। देयर इज नो सेकंड चांस फॉर हैविंग दिस स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट स्लाइड, बिकॉज हम इन्वोकेशन तक पहुंच गए हैं। जो डेडलाइन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है, डेडलाइन ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, बट एक बार हमने इन्वोक कर लिया, आईसीए साइन कर लिया, तो मैक्सिमम हमारे पास 30 जून का पीरियड, यहाँ 180 दिन ये 31 दिसंबर से गिन रहे हैं, तो वो 180 दिन या मैक्सिमम 30 जून तक हमें स्कीम को इम्प्लीमेंट करा देना है। व्हाट डज दैट मीन? आप इसको थोड़ा एनालॉजी से समझिए। बैंकों में जो अप्रूवल आती है, जो सैंक्शन आती है, तो जिस दिन सैंक्शन आती है उस दिन के आगे डिसबर्समेंट से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस होने चाहिए। मॉर्टगेज, पर्सनल गारंटी, बहुत सारे कॉर्पोरेट गारंटी, डॉक्यूमेंट का बनना, समझना, इंटरेक्शन, एडिटिंग, इट टेक्स टाइम। जनरली वो 15 दिन से 1 महीने का टाइम लेता है टू रीच एट डिसबर्समेंट स्टेज। द सेम काइंड आप रेजोल्यूशन प्लान में जितनी भी चीजें प्लान बनाएंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कंफर्टेबल टाइम दिया गया है। मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने का टाइम मैक्सिमम लगेगा इसमें, बट थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, 30 जून तक की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आराम से ये डेट अचीव की जा सकती है। ये 2 ब्लू राउंड्स जो दिख रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहला, ऐसे केसेस जो कि 100 करोड़ रुपए एक्सपोजर से ज्यादा हैं, वहां पे एक, इसमें 1 क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करानी होगी।
सो ये रेटिंग मेरे हिसाब से रेजोल्यूशन प्लान के साथ में ही करानी पड़ेगी. बैंकर्स नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर दे कंकर टू इट. सो अगेन मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताई कि अगले 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये पैरेलल एक्सरसाइज होगी फॉर अ बिजनेस विच हैज एक्सपोजर ऑफ मोर देन 100 करोड़. और 1500 करोड़ रुपए के ऊपर के एक्सपोजर्स में आरबीआई की एक स्पेशल कमेटी बनेगी जो इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेगी. तो ये थोड़े हर्डल्स बनाए गए हैं डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर, कीपिंग इन व्यू सेफगार्ड्स. Very simple. Don't go to read it. Reading of the whole slide may give you a different perspective, but बहुत आसानी से समझिए. प्रिपेयर एंड असेस. सो आज आप समझ रहे हैं इस स्कीम के बारे में. मैंने कहा कि आज के बाद एक आपका डिस्कशन होना चाहिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज डिस्कशन होना चाहिए अपने क्लाइंट से. और उस क्लाइंट के डिस्कशन के बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है कि उसका लोन क्या है, कैश फ्लो क्या है, ये निश्चित रूप से आप जिस फॉर्मेट में जिस तरह से चाहते हैं वो नहीं बना हुआ है, वो बनवाना ही पड़ेगा. बट एटलीस्ट these are few things you should be asking if they want help from your side. And then you need to speak with some external stakeholder. If you yourself are statutory auditor, you need to engage with the credit rating agency, because credit rating agencies में specific rating करानी होगी इस resolution plan की. तो आपको आज ही के दिन में अलग अलग क्रेडिट एजेंसी, उनसे क्या फी कोट आ रहे हैं, अलग अलग से क्या कंफर्ट है, पहले ऑलरेडी बिजनेस में कौन सी रेटिंग एजेंसी थी, उसको कंटिन्यू करना है, मैक्सिमम केसेस में उसको शायद ना लेना चाहें. सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. सो आगे आने वाले दिनों में रेजोल्यूशन प्लान के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और दूसरी चीजें भी रिक्वायर की जा सकती हैं अंडर इंडिविजुअल बैंक्स गाइडलाइंस. सो ये सब डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया, कैश फ्लोज, लोन समरी, डिफरेंट सर्टिफिकेशन, जून और सितंबर के नंबर का सर्टिफिकेशन, ऑफ कोर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए ही होगी मार्च की, क्रेडिट रेटिंग से इंटरेक्शन, वैल्यूअर से इंटरेक्शन, और अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड एडवाइजर. इफ यू योरसेल्फ आर एक्सपर्ट एंड एडवाइजर, इट्स वेल एंड गुड. बट अगर आपको तलाशना है, ढूंढना है कि रिस्ट्रक्चरिंग में कौन आपके साथ खड़ा होके उस बिजनेस की हेल्प करेगा, then again this will take time. And once the team is in place, basic documentation is placed, of course there should be a brainstorming exercise. You, client, advisor, bankers, interacting through different coordination meeting, और करना है नहीं करना है, करने में क्या स्कीम लेनी है, बेसिक प्रोपोजिशन आपको निकालनी होगी. और बिलीव यू मी, अगर आपके पास 5 क्लाइंट भी ऐसे हैं, आपकी बहुत सारी बैंडविड्थ इसमें कंज्यूम होने वाली है. यू नीड टू प्लान फॉर योर टीम. forget about the business team or many other person available. अगर आपके 5 क्लाइंट को भी ये जरूरत है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन एक्सरसाइज, और अगर ये जरूरत है तो आपको अपनी टीम को भी बनाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर नेटवर्किंग विद एक्सपर्ट्स. खुद की टीम अगले 3 महीने 4 महीने के लिए डेवलप करना, बनाना, वो थोड़ा चैलेंज होएगा. देन कोऑर्डिनेशन विद बैंकिंग टीम. वी ऑल अंडरस्टैंड नॉर्मली प्रोडक्ट के हिसाब से रिलेशनशिप मैनेज की जाती है. मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि रिलेशनशिप मैनेजर के लेवल पे, या जो फ्रंट लाइनर्स फ्रॉम बैंकिंग साइड है, वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग जैसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच्योर है, कितना एफर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज यही एक मेन कारण है कि अब तक बिजनेसेस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है रिस्ट्रक्चरिंग. मेरा ऐसा समझना है कि बैंक के ग्राउंड लेवल पे देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ कोचिंग, टीचिंग, इंटरेक्टिंग विद ग्राउंड लेवल रिलेशनशिप मैनेजर. अगर उसको ये स्कीम समझे में आए,
समझाई जाए और उसे ये पता हो कि हमें समझ है, तो ये चीज थोड़ी आसान होगी. Again, progression I need not to detail because documentation के बाद it will have its pace and flow. I have already explained on this content of resolution plan. जैसे मैंने बताया, आगे का कैश फ्लोज जो आपको बनाना है वो एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि उस कैश फ्लोज का आपको अपने बैंक को परस्यू करना होगा या क्लाइंट के बैंक को परस्यू करना होगा कि वो 2 महीने का एक्सटेंशन क्यों दे. सॉरी 2 साल का. और अगर किसी केस में वो बैंकर मैं हूं या आप खुद हो, तो आप निश्चित रूप से अगले 2 साल का मंथ ऑन मंथ कैश फ्लो चाहेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट तो चाहेंगे ही चाहेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो. सो एक लॉन्ग ड्रॉन एक्सरसाइज है, एंड बियॉन्ड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टोटल लोन पीरियड वो आपको कैश फ्लो की एक विजिबिलिटी विद एटलीस्ट 80-90%, 80% एक्यूरेसी विल बी डिजायर्ड. और ये 80% एक्यूरेसी का कैश फ्लो बनाना मैजिक है. It's not easy task. It's very very time taking. And वो लोगों ने जिन लोगों ने कभी कैश फ्लो एक्सरसाइज नहीं करी हुई, उनको मेरी रिकमेंडेशन है they should not do this. They should get it done through networking और एसोसिएशन जो उन लोगों से जो इस बात में रोज हैं. तो ऐसे लोगों से, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं. लेट्स डिस्कवर पीपल जो कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे. यू नीड टू एंगेज विद दोस्त, बिकॉज ये हम खुद नई तरीके से सीखने और करने जाएंगे, इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव. सो अगेन रेजोल्यूशन प्लान में कैश फ्लो के हिसाब से आपको रिपेमेंट का एक्सटेंशन प्रपोज करना, डिफरेंट बैंकों की पॉलिसीज और रिलेशनशिप मैनेज करना, बिकॉज they may not be agreeing to your proposition. आपको सारे बैंकों को एक ही रेशियो में स्लाइस करना है या अलग अलग. Those are nitty-gritties. Probably I should not be going much into detail in view of timelines available. Many of it I have already explained it to you, but what I am suggesting and emphasizing more and more is that restructuring is not a blanket permission. Every business will work to earn it. And when I say business, we are part of it. We need to understand this scheme more and more. And then as per understanding, we need to advise our clients. And then of course, client will be saying yes or no based on your working or your efforts. So a lot of efforts are to go, like for example, I can detail on point number 1. I'm saying you need to analyze pre-COVID financials, of course, month on month. Only annual analysis may not work because you need to build a case. Audited number होंगे, आपको analyze करना होगा. अगर audited नहीं हुए हैं, we need to work with auditor and internal team to get it finalized as soon as possible. Forget about कि return कब file करना है. हमारे को OTR के डिसीजन के लिए भी ये चाहिए होगा. Year to date financials में जैसा मैंने बताया, you may be required by individual bank scheme to furnish quarterly data, certified data. That will again be an exercise which will consume a lot of time. बहुत सारे compliances की तरफ भी देखना होगा, and then you need to build the case. बहुत सारे cases में banks आपसे पूछेंगे कि client ने कौन कौन सी ECL फैसिलिटी ली, कब ली, या फिर और दूसरी डिटेल मॉरेटोरियम ली. वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. मॉरेटोरियम लिया, किनसे लिया, उसका रिपेमेंट कैसे किया. सो ऑल दीज क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिल्ड दैट proposition for your client. A lot of efforts to go. Many of these points which are there, you can click picture of it, but it has been explained earlier also. This slide I should be explaining it to you because we are chartered accountant and we need to know. जो criteria रखे गए हैं, one of the basic ratios
जो केवी कामत कमेटी ने प्रपोज किए हैं, ये 5 रेशियोज हैं, जिनको मैं अगर कैटेगराइज करूं तो लेवरेजिंग, लिक्विडिटी एंड रिपेमेंट कैपेबिलिटी, ये तीनों को असेस करने के लिए, और इनकी प्रॉपर इलेबोरेट डेफिनेशंस दी हुई हैं स्कीम में। सो इसको टेक्निकली बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये दोनों रेशियो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, एवरेज टोटल नेटवर्थ, एडजस्टेड टोटल नेटवर्थ, ये क्या चीज है कि आपकी नेटवर्थ टेंजिबल कितनी है। व्हेन आई से टेंजिबल, आपके जो ऐसे इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं इन द बैलेंस शीट, वो उससे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, या ग्रुप कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस तरह के रेशियोज प्रोवाइड किए गए हैं। मैं वो आपको स्लाइड भी दिखाता हूँ। 22 इंडस्ट्रीज के 5 रेशियोज स्पेसिफाइड किए गए हैं, और उन रेशियोज को कंप्लाई करते हुए ही आपको फ्यूचर कैश फ्लोज बनाने हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज एंड सीएमएस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज और बैलेंस शीट, ये तीनों ही असेस होंगे। अगेन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीएमए प्रिपरेशन। तो इसमें 5 में, बाकियों में तो सेक्टर स्पेसिफिक है, लेकिन ये जो डीएससीआर, एवरेज डीएससीआर और करंट रेशियो, ये अबव 1, और ये दोनों अबव 1, और 5वां जो एवरेज डीएससीआर फॉर 5 इयर्स, जो लोन पीरियड है, वो 1.2 से कम नहीं होना चाहिए। सो टेक्निकली आप अच्छे से समझते हैं रेशियोज को। आपको ये देखना होगा कि कौन से रेशियो कंप्लाई करने हैं किस सेगमेंट के लिए, वो मैं आपको एक स्लाइड से व्यू कराऊंगा एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। स्कीम का ब्रॉड फ्रेमवर्क है, मॉरेटोरियम अलाउ करना 2 साल मैक्सिमम। ये 2 साल मैक्सिमम मतलब आपके कैश फ्लो के हिसाब से जस्टिफाई होंगे। मैक्सिमम 2 इयर्स है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा कैश फ्लोज प्रेजेंट करता है कि साल भर में आप रिवैम्प कर जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे, तो there will not be a need of allowing you 2 years moratorium. So every case needs to be built. Fresh facility के propositions हो सकते हैं, it has not been denied under guidelines. ऐसे भी प्रपोजिशन हो सकते हैं जहां डेट को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया जा सके। बैंकर्स अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से, इसको ऑफलोड करने के हिसाब से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कन्वर्जन के प्रपोजिशन दे सकते हैं। बाकी इसमें इक्विटी के में कन्वर्जन की बात की हुई है, वो मुझे समझ में नहीं आती कि अभी तक मुझे भी इस विषय में बहुत क्लैरिटी नहीं है। मेरी प्रपोजिशन है कि आप लोग भी इसको डिस्कवर करें। जैसे उनका कहना है कि कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी शैल बी डन एट अ कलेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ ₹1। व्हाट डज दैट मीन? एंड विल देयर बी इक्विटी proposition from bank side? So that is something we need to explore. We need to talk to our bank. I have talked to a few bankers. They still are not sure how it will go in resolution plan. So this is something, area where we need to learn more, including me also. Escrow mechanism, I'm saying the last one. This is simple to understand but very difficult to implement. स्कीम के हिसाब से आगे आने वाले दिनों में बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा और उसको किस किस प्रायोरिटी से पे किया जाएगा, इट्स वेरी इजी टू बिल्ड एज अ केस बट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन स्पेसिफिक सिचुएशन। हम सब जानते हैं बिजनेस में कितनी रैंडमनेस है और कितनी फायर फाइटिंग है। वी आर स्टिल नॉट दैट restructured, we are not that structured to accommodate this. This is something asset classification and provisioning. So जैसे मैंने बताया, I don't think you need all these explanation. The 4th bar you can read and I have already explained कि 10% of total debt की provisioning करनी पड़ेगी उनको जिन्होंने इस स्कीम को अप्रूव किया है। ये बैलेंस शीट पे हिट लेना पड़ेगा बैंक्स लेंडर्स को।
और वो जो कंप्लाई भी करेंगे और जिन्होंने डिसेंट किया है, तो डिसेंटिंग लेंडर्स will need to be provide for 20% of total debt. So it's not debt, it's debt. We have already explained. यहाँ एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जो बासल नॉर्म्स हैं फॉर असेट क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारा मंच है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नवी मुंबई ब्रांच में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, मैं फ्लेक्सिबिलिटी लेके ये बात कहना चाहता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बासल नॉर्म्स के हिसाब से जो ये 90 दिन का क्राइटेरिया है, ये क्या मतलब ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे सेगमेंट, सारे इंडस्ट्री, सब तरह के लोन्स के लिए यही क्राइटेरिया है. शुड देयर नॉट बी अ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एसएमईज? हम सबको मालूम है एसएमईज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैच्योरिटी, उनके इंटरनल प्रोसेस की मैच्योरिटी, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनकी सिविल रेटिंग, डीपीडीज, एंड ये नॉर्म बन चुके हैं. मतलब फ्रॉम माय साइड दिस इज प्रपोजिशन, दिस इज अ थॉट टू पॉन्डर अपॉन. क्या ये 90 दिन अगर 180 दिन हो जाए फॉर एसएमईज, तो क्या ये हेल्प करेगा पूरे सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प मिलेगी. 180 दिन का होना का एडवर्स इंपैक्ट क्या होएगा वो मुझे समझ में नहीं आता. पॉजिटिव इंपैक्ट ये होएगा कि नॉर्मली हमारे बिजनेस में अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहे पेमेंट वाइज, then we can be discussing on this, but this is a thought from my side. I feel this is very stressful to comply with current Basel norms, with particularly for SMEs. बहुत stressful है वो चीज. Then there are reversal provision. मुझे नहीं लगता आज के सब्जेक्ट में ये लेना चाहिए. डिफॉल्ट पोस्ट आरपी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें बहुत सिंपली आप ये समझिए कि आपने रेजोल्यूशन प्लान, आरपी मीन्स रेजोल्यूशन प्लान, अगर रेजोल्यूशन प्लान आपने बना लिया तो उसके साथ उसके हिसाब से ही आपको अपने रिपेमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट बैंकर्स वो कंप्लाई करना है. अगर वहां स्लिपेज हुई तो वो डिफॉल्ट होएगा एंड देन इट विल बी डाउनग्रेडेड टू एनपीए स्टेटस. फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी है. सो एक बार आपने ओटीआर लिया, आपने कोई स्कीम प्रपोज की, उसके हिसाब से चला, बहुत अच्छा. उसके हिसाब से नहीं चला, एनपीए हो गया, तो आपको जून 2019 की गाइडलाइंस है अगेन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए. ये थोड़ा कंपाइलेशन है जो अभी तक हम लोगों ने बात की, जस्ट टू कंपाइल द स्टेप्स. ये बिजनेस के हिसाब से है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस शुड बी आवर प्रपोजिशन टू आवर क्लाइंट, that what should happen. So in a case where we are experts, there is no need to go for this step. In a case there is a need to hire experts, restructuring experts जो कि technically बहुत sound है, this will become very important step, और इसमें time भी लगेगा, efforts भी लगेगा, energy भी लगेगी. Preliminary review of data, again जैसे मैंने कहा आपको लोन समरी, कैश फ्लोज वो थोड़ा डिटेलिंग करके पढ़ना होएगा. जून सितंबर तक के फाइनेंशियल समझने होंगे मंथ ऑन मंथ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट रहेगा आगे आने वाले कैश फ्लो मेकिंग में. टीम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीम, डेटा प्रिपरेशन, बिकॉज बैंकिंग गाइडलाइंस को समझना और बैंकर इंटरेक्शन के लिए डेटा, विदाउट डेटा प्रिपरेशन आप बैंकर से क्या डिस्कशन करेंगे. एंड ये उसी बैंकर से करने हैं डिस्कशन आपको जिन सारे बैंकर से आप एडिशनल फंडिंग की बात कर रहे हैं. तो थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी. विदाउट डेटा नोबडी इज गोइंग टू लिसन एनीथिंग. एंड बिलीव मी, व्हाट आई कुड सेंस, बैंकर्स के लेवल पे सब लोग रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आना चाहिए, वैसी पॉजिटिविटी नहीं है. I'm not seeing that proactiveness on their part. They will do everything to have minimum
numbers of restructuring. But what I feel, this number is going to increase manifold in the month of November and December, because October will be a month where we all will be understanding the scheme banking guidelines. There will be stressful situation in business for many reasons. And then, of course, the second last thing will be framing draft RP, a draft which you can take to banks for approval. And then, of course, invocation. So these are few actionables for promoters. I think I have deliberated on this. The only question remains कि 25 करोड़ से नीचे वाले केसेस में अगर मल्टीपल लेंडर हैं तो क्या वहां सबसे लेनी पड़ेगी परमिशन, या 75% और 60% का जो क्राइटेरिया था जो 25 करोड़ से ऊपर वाले के लिए था उसको कंप्लाई करने पड़ेगा। इसकी क्लैरिटी इंडिविजुअल बैंक गाइडलाइन से या बैंकों से इंटरेक्ट करके, मुझे आरबीआई गाइडलाइंस में इसकी क्लैरिटी नहीं है कि 100% बैंकर से लेना पड़ेगा या 75% और 60% कंप्लाई होंगे। और एक और विषय है जो मेरे दिमाग में है कि 25 करोड़ से नीचे वाले के केस में अगर 1 मार्च के बाद वो अकाउंट एनपीए भी हो गया तो भी आप उसको रिस्टोर कर रहे हो। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? 25 करोड़ से ऊपर वाले केसेस ने ऐसा क्या गुनाह किया है, या वो क्यों ऐसे डिफरेंशिएशन हो रहा है कि उनको स्टैंडर्ड रहना जरूरी है? सो दीज आर फ्यू केसेस, फ्यू फैक्ट्स जहाँ पे कि मुझे समझना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है, बात करनी है डिफरेंट लेवल ऑफ बैंकिंग सिस्टम पे, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बनानी जरूरी है। एक्शनेबल फॉर यू गाइज, फॉर अस, मैनिंग द प्रोसेस। तो टीम जब मैं कह रहा हूं तो आपको पूरा वो जो मैंने आपको इकोसिस्टम बताया है वो पूरा ध्यान में रखना होगा। आपकी टीम है, आपकी फर्म के लोग, आपकी टीम है, क्लाइंट की टीम आपकी टीम है, बैंकर्स जिनके साथ आपको ये स्कीम निभानी है। So you need to identify, you need to create a matrix of contact number, email IDs of all these people, and then assign responsibility with timelines. So ये टीम का पहला एक्शन पॉइंट्स है। Again, you need to initiate discussion on behalf of the business of your client with bankers. उन बैंकर्स के साथ आपका पहला डिस्कशन कि वो स्कीम कहाँ है। So you need to take these schemes, understand it on behalf of your client. And then, of course, before you go back to bank and discuss for many such things, you need to have basic documents in place. So audited balance sheet March की, June, September का cash flow situation, and then of course, the basic cash flow working with your client जो कि आप बैंक को प्रपोज करने वाले। These are few actionables on your part. Guys, hope I have been able to put forth my proposition vis-a-vis OTR. And when we are understanding OTR, my proposition is that let's understand restructuring thing. Any business caught in this cash flow problems need help and should be helped, and there are enough of provisions in banking system to help it. There is no need of getting panic, और बैंकिंग सिस्टम का अगर हम रिपेमेंट रीस्ट्रक्चरिंग करा पाए तो बिजनेस का बहुत सारा लोड निकल जाता है। सो दिस इज क्वाइट डूएबल, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर एनी हैंड होल्डिंग, फॉर गाइडेंस, फॉर एनी जॉइंट वर्किंग। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you so much. Thank you, sir. Sir, there are few questions from the participants which we would like to ask to you. Shall we? Yeah, please go ahead. Okay, so first question is, what is mean by implementation of resolution? Okay,
मैंने कहा कि रेजोल्यूशन प्लान तो आपको समझ में आ गया है। एक स्कीम, एक कागज का टुकड़ा अपने को 15, 20 पेज, 50 पेज का बनाना है, जो बैंकर से इंडिविजुअल अप्रूव कराना है और फिर आईसीए करना है, आईसीए इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। तो आप समझिए कि एक स्कीम बन गई जिसको सारे बैंकों ने अप्रूव कर दी। अब स्कीम बनने के साथ साथ हो सकता है बैंक बोले कि मैं प्राइम बैंकर हूं, मैं लीड बैंकर हूं, मुझे सारे बैंक बोले कि मुझे क्रॉस कोलेटरल चाहिए। एडिशनल प्रपोजिशंस आएंगे उस स्कीम में, कई सारे फाइनेंशियल कोवेनेंट्स की स्कीमें आएंगी। आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट विद इंडिविजुअल बैंकर है, दैट विल गेट चेंज इन एवरी रिस्पेक्ट। देयर विल बी मैकेनिज्म ऑफ एस्क्रो एग्रीमेंट। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक एनालॉजी के हिसाब से आपको बताया था कि जब कभी किसी बैंक का सैंक्शन लेटर आ जाता है, हम कोई फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, फाइनेंसिंग कराने जा रहे हैं और हमारे को सैंक्शन लेटर मिल गया, तो सैंक्शन लेटर के दूसरे दिन ही डिस्बर्समेंट तो नहीं होता, हमारे को कंप्लाई करना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, कोलेटरल्स देनी होती हैं, चार्ज क्रिएट करने पड़ते हैं, गारंटी के डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स आर साइन एंड देयर आर प्रोसेसेस टू इट। सो पहले वो डॉक्यूमेंट बनते हैं, पढ़े जाते हैं, एडिटिंग होती है, साइनिंग होती है, फिर लॉ के प्रोसीजर होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी प्रोसीजर्स होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट। सो implementation is whatever has been agreed between you and many bankers. Many of the documentation vis-a-vis those agreements needs to be done within this time frame. And once every documentation is done, you are allowed time period maximum up to 2 years extension मिल गया, आपने कैश फ्लो प्रपोज किया हुआ है, आपको वो स्कीम आगे चलानी है, तो आपका जो एक्सटेंड जो पीरियड है, मोरेटोरियम पीरियड है या कैश फ्लो कंप्लायंसेस है, दैट विल गो बियॉन्ड 30th जून। 30th जून से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है, चार्जेस से रिलेटेड, कोलेटरल से रिलेटेड, क्रॉस कोलेटरल से रिलेटेड। होप आई हैव मेड क्लियर। Second question, sir. Loan in one bank is standard and NPA in other bank. Whether bank in whose accounts is standard can go for restructuring the loan account. तो अभी का जो एक्सटेंड प्रोविजन है ना सर, आपका कोई भी लोन आपकी किसी भी एंटिटी में एनपीए हुआ तो सारे लोन एनपीए। ओके, मतलब दूसरे बैंक में भी अगर एनपीए है तो मेरा दूसरा बैंक, दूसरी एंटिटी, मतलब आपकी ग्रुप कंपनीज जहां आपकी मेजर कंट्रोल है 51% से अबव। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये केवल एंटिटी वाइज ही नहीं चलता है, आपकी 2 एंटिटीज हैं जहाँ पे कि बिजनेस की 2 एंटिटीज हैं और अलग अलग बैंकों से लिया गया है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑफ हैविंग वन एंटिटी एज अ स्टैंडर्ड एंड अनदर एज एनपीए। That is why this become a very sensitive subject. So I hope, yeah. क्या ये प्रोएक्टिवली बैंक इतना देखते हैं क्या, कहाँ पे एनपीए है, कहाँ पे एनपीए नहीं है? मुझे नहीं लगता कि बैंक के पास इतना टाइम है कि वो देख सके ये सब। नहीं, आप समझते नहीं है। आप मतलब you might have not come across, आप बैंकिंग फाइनेंस का आपका इतना काम नहीं होएगा। It's being seen. Okay. DPDs are being seen by many bankers. See, when things are good, you may have escape, but this is a special situation. Everything is being minutely observed by everyone. Okay. So next question is, can bank obtain additional collateral security? देखो वो प्रपोज करेगी अगर उनको पता है कि आपके पास, ये दोनों तरफ का नेगोशिएशन होगा। देखिए, आप एडिशनल फैसिलिटी मांग रहे हैं, एक्सटेंशन मांग रहे हैं, एक्सटेंशन के अलावा हो सकता है आप बोले कि नहीं मेरे को और फैसिलिटी भी चाहिए, तो उनकी तरफ से ये प्रपोजिशन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, हम आपके लिए कर सकते हैं, वी नीड मोर कोलेटरल, प्रोवाइडेड दे आर अवेयर एंड यू कैन गिव इट टू देम। ये बैलेंसिंग का काम ही तो हमारा काम है। देयर आर मेनी लॉजिक्स। अब बहुत सारे केसेस में जहां पे कि लोन 2-2 साल 3-3 साल चल चुके हैं, आज आप समझिए, आज आपका लोन टू सिक्योरिटी है जो 2 साल पहले नॉर्म समझिए 200% सिक्योरिटी ली गई थी,
आपका लोन तो आज 2.5 साल के बाद आधा पे हो चुका है, लेकिन क्या आप वो सिक्योरिटी रिलीज करा सकते हैं? नहीं। बट रेजोल्यूशन प्लान में यू कैन बिल्ड ऑल दीज केसेस कि बस आपका जो कोलेट्रल रहेगा वो 200% रहेगा मैक्सिमम. दिस फैसिलिटेट्स यू फॉर टॉप अप. This can facilitate, not in every case. Okay. So last question, I think, what if in moratorium individual has paid his home loan EMI, can he get interest refund in view of new scheme of waiver of interest less than 2 crore by central government? So वो almost हुआ सा ही है. मुझे ऐसा लगता है कि the answer is yes. 2 करोड़ रुपए से कम के केस में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के प्रोविजंस नहीं होंगे, वो रिवर्स होंगे. दैट विल बी टेकन केयर बाय गवर्नमेंट, बिकॉज बैंक को तो कहीं ना कहीं से उसका हिसाब रखना पड़ेगा. अब वो गवर्नमेंट उसको कैसे अकोमोडेट करेगी, या आरबीआई उनको उसके लिए रिवर्सल करने के लिए बोलेंगे या क्या लाएंगे, वो दैट इज समथिंग टू बी सीन. बट इट सीम्स गवर्नमेंट इज कंसिडरेट एंड इट्स हैपनिंग. बट 2 करोड़ रुपए के केसेस बहुत कम है. मतलब प्लेथोरा ऑफ इन मेनी ऑफ द केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं 2 करोड़ के ऊपर हैं, और यही लॉजिक प्रिवेल करेगा. लिटिगेशंस बढ़ेंगे, ऐसा मेरा समझना है. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू बैंक्स, नॉट टू एनबीएफसीज? नहीं, मैंने बताया ना आपको, एनबीएफसीज, सी एज अ लेंडर इट शुड बी एनबीएफसी, एचएफसी. बट अगर लोन एचएफसी को दिया हुआ है, वो क्राइटेरियाज में नहीं है. ओके. तो एंड कस्टमर होना चाहिए कोई एक इंडिविजुअल एंड कस्टमर या बिजनेस. एनबीएफसी ने लोन दिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने दिया, प्राइवेट बैंक ने दिया. केवल मेरा जो समझना है, वो फंड्स जो एआईएफ फंड्स होते हैं ना, अब जैसे कोटक बैंक से आपने लिया या कोटक एनबीएफसी से लिया, एक्सिस बैंक से लिया या एक्सिस की किसी एनबीएफसी से लिया, ये कवर्ड है. लेकिन अगर एक्सिस फंड से लिया या कोटक रियल स्टेट फंड से रियल स्टेट बिजनेस के लिए लिया, तो वो कवर्ड नहीं. I think, sir, there are no more questions. These were the questions. Before I leave, I promise that I should be making you view this one. You are able to see my screen? Yes, sir. 1 second. So quickly, if you can click this. Sir, what we request, if you can share your PPT in this report, we will circulate it to the group, or we will upload it on our website, branch website, so everyone can have a visibility about these documents. I will definitely be circulating this, but you can click instantly. This is something vis-a-vis that important ratio, how it will be calculated. Irrespective of the fact that we are chartered accountants and we know it all. Hope you all would have clicked. Let me go to another important slide, which is, this is content of KV Kamath report. Yes, this is very important slide where all those 5 ratios are given in columns. So all those ratios, I hope you are seeing it. Yes. So, for example, if you could see it, and this is all available on net, so absolutely no problem. So if you could see this, I have highlighted. In real estate commercial, total outside liability to adjusted net worth is being allowed up to 10 and 12 even. Can you see it? Yes. So total outside liability to net worth, adjusted net worth, is allowed up to 10. And in terms of EBITDA, total debt to EBITDA,
it is 12, which is amazing. Normally it's between a range of 3, 4, 5. But in case of real estate, and one special feature is there, of course, people who are related to real estate. We all know in real estate, we don't pay through DSCR. We don't pay through profit. We always receive payment from your customer, which is booked as liability in the balance sheet. So the repayment of loan is done through receipt and not the profit. While as हमारे को ये रेशियो कंप्लाई करने पड़ेंगे DSCR के. So that is something to be seen, because मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहा इतने साल. हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे वो रिसीट पोटेंशियल वर्सेस लोन लायबिलिटी का कैलकुलेशन करते थे, और इनमें से कई सारे, तो ये 22 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कि केवी कामत ने तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिया है कि आप कैश फ्लो बनाते समय इन रेशियोज के नीचे नहीं आएंगे, या करंट रेशियो और एवरेज DSCR और DSCR के केस में 1 से ऊपर ही रहेंगे, विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, जो नोट में दिया हुआ है. तो वो अलग अलग सेगमेंट्स में. अच्छा, यहाँ भी आपका बड़ा एक्सपर्टीज चाहिए होगा. देखो आप, ऑटो कंपोनेंट अलग है, ऑटो डीलरशिप अलग है, ऑटोमोबाइल. सो it will require specialization or expertise to define a particular business and relate it to a particular segment. So interesting है आगे आने वाले दिनों में. और हमारे बिजनेस सिनेरियो जो कि कंप्लीटली या मोस्टली डीलिंक्ड रहता है बैलेंस शीट से, बिजनेस to my experience has been at length, business in the mind of the promoter has been at length from the balance sheet. Now in this scheme, everything will revolve around CMA data. So balance sheet, profit and loss, and cash flows. And this will be interesting to see how businesses which are opting OTR will be able to comply with all these committed ratios. So great responsibility on our part. These all things are available on internet. You can have it from there. And I will definitely be circulating my presentation to you. Okay, sir. So how do you see this table? Like, it is reasonably evaluated, or it is one-sided to lender side or to the borrower side? No, so my comment on this table is there are few few exceptions. It has been moderately covered, but believe me, chartered accountant in practice or chartered accountants working for SMEs, they understand a plethora of unsecured loans, and there are intangible assets in the form of loan given to group entities or many other such advances to other outside group. So all these will find adjustments. Time will only tell. It has been well crafted, provided बैलेंस शीट और बिजनेस एक जैसा चलता, जो कि हमारी सच्चाई नहीं है. सो बिजनेस डिफरेंट है बैलेंस शीट से, और वो अगर होए, मतलब वो एक आइडियल सिचुएशन है. हमारे जैसे मतलब हम सबकी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदारी है कि जो बिजनेस प्रमोटर के दिमाग में है और जो बिजनेस बैलेंस शीट से दिखता है उसका सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है. बैंकिंग सेगमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हम जैसे आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एंड ओवरऑल बिजनेस के लिए. होप whatever I'm saying is making sense to you. Yes, definitely, sir. Yeah. Any other question? Let me check, sir. Okay, so there is one more question: whether these ratios are applicable only to manufacturing industry. But No. I think that is a segment-wise, specific industries are given in that. And this has been exemplified. So KV Kamath report has
given it for 22 segments. For other business segments, there are plethora of business segments. Committee has recommended that banks should be having their own policies, and mostly banks would be having policies to have ratios around these only, because Okay. they are provided. अब जैसे करंट रेशियो और DSCR ये तो हम सब समझते हैं ना कि below 1 का क्या मतलब होता है. You getting my point? So Yes, yes. DSCR को 1 के ऊपर या एवरेज DSCR जो फॉर द पीरियड ऑफ लोन होगा उसको 1 के ऊपर होना ही होएगा ना, नहीं तो पे कैसे होएगा. या करंट रेशियो कई बिजनेस में थोड़ा 1 से नीचे है, उसको ग्रेजुअली कंप्लाई करना पड़ेगा. इट नीड्स टू बी मोर देन 1. And when it comes to total outstanding liability to adjusted net worth or total loan to EBITDA, of course there will be some challenges, because as I said, there have been delinking. तो वो वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज काम में आएगी. जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट समझते हैं, उनकी एक्सपर्टीज काम में आएगी. It's not something which is not doable or achievable, so very well manageable. So now we should close this, right? Okay. Okay, so on behalf of Navi Mumbai branch, we would like to thank you for sparing time for us My and pleasure. giving us such an insightful new domain. So according to me, it is a new domain which requires lots of planning, which requires lots of strategy, which requires lot of execution work. It is not a straightforward thing that if it is submitted, the resolution is over. So lot of negotiation is also need to be done. And as a chartered accountant, definitely we have a very important role to play in this, especially in this kind of situation where COVID is there, businesses are impacted. So a very nicely detailed presentation in a you can say short 2 hours time. I think people are going to call you to ask you too many questions. So sir, be ready. You're most welcome. And see, the volume of the work is going to be much bigger. My proposition is that let's have 3-4 members committee here only for restructuring subjects, so that nobody should face, no chartered accountant in our vicinity should face any problem, and we should always be available as a help. Yeah, so yeah, like two suggestions which mentioned by you. One is this at panel of 3 to 4 experts in this, and second suggestion I'm not able to recollect, but you have given one more suggestion which we can definitely think, and we are going to discuss this internally, and whatever is the output, we will circulate it to our Navi Mumbai members. So thank you so much, sir, for your wonderful presentation and wonderful insights on this niche field. Okay, thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you.